Guys, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are here to discuss about the class 10th English worksheet number 20. First of all, we will discuss about the content. We will try to understand the content and then we will try to solve the question answers. Let's begin. As it is visible on your screen, subject is English and worksheet number 20, date is 20th of August 2020, and this passage has been taken from your chapter Letter to God. First of all, we'll try to it in English and then we'll try to translate it in Hindi also. चलिए शुरुआत करते हैं. The hailstorm completely destroyed Lencho's crops, which made him very dejected and depressed, which made him very sad. So the hailstorm completely destroyed Lencho's entire crop, and this made him very sad or very upset. काफ़ी upset हो जाते हैं. He wrote a letter to God. वो गॉड को एक लेटर लिखते हैं. इन द लेटर ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 पेसोस टू सेव हिम एंड हिज फैमिली. और लेटर में क्या लिखते हैं? ही रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम 100 पेसोस, कि आप 100 पेसोस भेज दीजिए, मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूरत है. द पोस्ट मास्टर हु रेड द लेटर लॉर्डेड दिस मैन who had unquestioned faith in God and decided to help in terms of money. जिस पोस्ट मास्टर को लेटर मिला, he praised this man, वो लेंचो की प्रेज करते, प्रशंसा करते हैं, that he had the unquestioned faith in God, कि भगवान में इतना ज़्यादा विश्वास है, and he decided to help लेंचो, वो लेंचो के हेल्प करने का डिसीजन लेते हैं. He asked the employees of the post office and also his friends to give charity. Charity means donation, दान देने के लिए अपने फ्रेंड्स और जहाँ और एम्प्लॉय थे उनसे बात करते हैं. However, they were able to collect only a little more than 50 pesos as requested by the Lencho, but they could collect only 50 pesos, यानी 50 पैसों से थोड़ा ज़्यादा वो कलेक्ट कर पाते हैं, जबकि लेंचो ने डिमांड की थी कितने की? 100 पेसोस की. The postmaster put the money in an envelope and इट वॉज एड्रेस्ड टू लेंचो. एक एनवेलप में डालते हैं और लेंचो का नाम लिख करके वो लेटर पोस्ट कर दिया जाता है. व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? उसके बाद क्या हुआ? द फॉलोइंग संडे, नेक्स्ट संडे, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, थोड़ा जल्दी आ जाता है देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, ये पता करने के लिए कि क्या उसके लिए लेटर आया. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर experiencing the contentment of a man who has performed a good deed. And postmaster handed over that letter to Lencho. Lencho को वो लेटर दे दिया and he was feeling quite satisfied. पोस्टमास्टर को बड़ा अच्छा लग रहा था कि उसने वास्तव में किसी की हेल्प की है, वास्तव में जिसको ज़रूरत थी. And looked on from his office, और दूर से ही ऑफिस से लेंचो को देखता है कि उसका रिएक्शन क्या रहेगा. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. Lencho was damn sure, उसे पक्का ऐसा लग रहा था कि भगवान उसकी सुनेगा, हेल्प करेगा, पैसे भेजेगा, इसलिए he didn't show any surprise. उसने बिल्कुल भी हैरानी नहीं शो की. But he became angry, लेकिन वो नाराज़ हो जाता है. Why? When he counted the money and he found it was not 100 peso as he requested from God. उसे लगा कि 100 पैसों की बात की थी, ये तो 100 पैसों नहीं है. And he had unquestioned faith in God. God में उसका विश्वास था and he knew that God couldn't make mistake, और उन्हें ये भी लगता है कि भगवान तो गलती नहीं कर सकता. So God could not have made such a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. और ना ही भगवान उसे मना कर सकता था कि 100 पेसोस की डिमांड की और कम भेज दे. Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. तुरंत ही लेंचो ऊपर जाता है इन द पोस्ट ऑफिस एंड he asked for the paper and ink, कि मुझे एक पेज और पेन दीजिए. On the public writing table he started to write. वो लिखना शुरू कर देता है. With much wrinkling on his brow caused by the effort he had to make express his ideas. He was writing all that letter in quite anger. वो काफ़ी गुस्से में लिख रहे थे. And when he finished, जब वो लेटर लिख लेते हैं, he went to the window
टू बाय स्टैम्प, एक स्टैम्प खरीदते हैं, व्हेन इट फिक्स्ड एंड देन अफिक्स टू द एनवलप एंड विद ए बो टू हिज फिस्ट, उसके बाद वो अफिक्स कर देते उस टिकट को अपनी फिस्ट के साथ, किसके ऊपर, एनवलप के ऊपर। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, जैसे वो मेल बॉक्स में लेटर डलता है, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसको खोल के देखता कि क्या लिखा है लेटर में। दोबारा से लेंचो ने थैंक यू बोला होगा, ही वॉज एक्सपेक्टिंग। इट सेड, उसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 pesos रिच्ड हियर, गॉड आई रिक्वेस्टेड फॉर द 100 pesos, मैंने 100 pesos की बात की थी, एंड यू सेंड, आई रिसीव्ड ओनली 70 pesos, मुझे 70 pesos ही मिले हैं, सेंड मी द रेस्ट, बाकी पैसा भेज दो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रुक्स लेंचो। लेकिन लेंचो कहता है पोस्ट से मत भेजना भगवान, पोस्ट से मत भेजना गॉड, क्योंकि ये जो एम्प्लॉयज़ हैं ये क्रुक्स का, ठगों का टोला है लेंचो। तो ये था आपका कंटेंट। अब हम क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं। सो दीज द क्वेश्चन आंसर्स आर रिटन हियर, सो हियर आर द क्वेश्चंस एंड द आंसर्स, सो दैट्स व्हाई we are going to discuss these in details. Here first question is there, why did Lencho come early to the post office? जल्दी क्यों आ जाता है? Lencho came early to the post office to know if there was a letter for him because he wrote a letter. आपको पता है कि उन्होंने लेटर लिखा था, तो वो पता करने आ गया था कि क्या मेरे लिए लेटर आया। So Lencho came earlier to the post office to know if there was a letter for him. Second question, was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? Why? क्या उसको हैरानी हुई कि पैसा उसे मिल गया है, और हुई या नहीं हुई? नहीं हुई तो क्यों? No, Lencho was not surprised to get the money. He was very confident that God would definitely help him, क्योंकि उसे पहले से विश्वास था भगवान पैसे भेजेगा. So it was not a surprise for Lencho. Third question is there. Why was Lencho angry when he counted money? Lencho was angry when he counted money as it was not the full amount that he had demanded from God. It was just 70 pesos and he requested for 100 pesos. तो वो एंग्री क्यों हो जाता है? क्योंकि उसने जो डिमांड की थी उतने रुपए, उतने पैसोस नहीं थे. Fourth question is there. What did the postmaster do when the letter fell into the mailbox and why? जब मेल बॉक्स में दोबारा लेटर डालता है लेंचो, तो उसके बाद पोस्ट मास्टर क्या करता है और क्यों करता है? द पोस्ट मास्टर इमीडिएटली ओपन द लेटर टू नो लेंचोज फीलिंग फॉर द मनी ही हैड रिसीव्ड. ही वांटेड टू नो दैट कि लेंचो ने क्या वापस लिखा है, कैसा उसे लगा है पैसे देख करके, पैसे मिल करके. सो द पोस्ट मास्टर इमीडिएटली ओपन द लेटर टू नो लेंचोज फीलिंग फॉर द मनी ही हैड रिसीव्ड. हियर इज द फिफ्थ क्वेश्चन. इन द फिफ्थ क्वेश्चन इज दैट फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स जिनका मीनिंग सेम हो. सेटिस्फेक्शन, द वर्ड फ्रॉम द पैसेज इज कंटेंटमेंट. चीटल, द वर्ड इज यूज इन पैसेज इज क्रूक. ग्लूड, द वर्ड यूज इन पैसेज इज अफिक्स. डिसएग्री, डिनाइड. एंड हियर आर द वर्ड्स जिनको हमें यूज़ करना है. ये मेटाफोर के तौर पर यूज़ किए गए हैं. फिगर ऑफ स्पीच, जैसे आपके अलंकार होते हैं ऐसे ही फिगर ऑफ स्पीच होते हैं. मेटाफोर क्या होता है? जिसमें दो वस्तुओं की तुलना की जाती है गुणों के कारण, चाहे वो दिखने में एक जैसे नहीं हो, किसी भी कारण. तो चलिए तीन वर्ड है. पहला रेन ड्रॉप्स. रेन ड्रॉप्स हैज़ बीन कंपेयर्ड विथ, हैज़ बीन गिवन द नेम एज न्यू कॉइन्स बिकॉज ऑफ देयर शाइन एंड वैल्यू ऑफ गुड मनी. बिकॉज रेन ड्रॉप्स एंड न्यू कॉइन्स बोथ आर सिमिलर इन शाइन में भी सिमिलर होते हैं, वैल्यू में भी सिमिलर. कैसे थे? बिकॉज दोनों से उम्मीद थी कि रेन ड्रॉप्स आएंगे तो उन्हें पैसे मिलेंगे. हेलस्टोन्स, हियर हेलस्टोन्स, न्यू सिल्वर कॉइन्स और फ्रोजन पर्ल्स कंपेयर किया गया ड्यू टू द रिजेम्बलेंस ऑफ इन कलर एंड हार्डनेस ऑफ ए पर्ल. इनकी तुलना इसलिए की गई क्योंकि वो कलर में भी मिलते जुलते हैं, हार्डनेस टू ए पर्ल, और वैसे ही सख्त होते हैं, तो गुणों के कारण. हियर इज कंपेरिजन बिकॉज ऑफ द क्वालिटीज. नेक्स्ट वन इज लेंचो. लेंचो को बोला गया अन ऑक्स ऑफ ए मैन.
इट मीन्स ए मैन वर्किंग हार्ड लाइक एन ऑक्स और एनिमल। तो लेंचो भी उतना ही मेहनत करता है, इसलिए लेंचो को बोला गया है एन ऑक्स ऑफ ए मैन। दैट्स ऑल इन दिस सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।